Remaining students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay. So let's start the lecture. I will share the screen. Okay. In previous class, we have to study about the amplitude modulation, definition of amplitude modulation, and the various types of amplitude modulation. Basically, there are the four types of amplitude modulation: double sideband full carrier, double sideband suppressed carrier, single sideband full carrier, and single sideband suppressed carrier. Okay. And afterward, we have to study about the parameter of AM, in which first one parameter we have to study about the modulation index. Okay, so the modulation index is basically the ratio of Vm and Vc, Vm by Vc, and in terms of modulation index in Vmax and Vminimum, when we consider the double sideband full carrier Am, then the modulation index is derived in form of Vmax and Vminimum, and the another form of modulation index M equals to Vmax minus Vminimum divided by Vmax plus Vminimum. Okay. Afterward, we have to study about the various case of the modulation index. When M equals to 0, then there is no any type of modulation for the AM, and the case second when the M is maximum, M is 0.5 half, and the range of modulation index practically it is in between 0 and 1. So in case of second case, we have to consider M equals to half, that is 0.5. And third one case when M is the M equals to 1, that is the maximum modulation. Okay. And the also consider the case fourth when the modulation index is greater than 1. If we consider the modulation index is out of the range of modulation is in between 0 and 1, but when we consider the modulation index is greater than 1, then there will be a problem will be created, that is known as the overlapping. Okay, when we consider the M equals to 1, then there will be the issue is arises, that is also known as the overlapping, and the overlapping is the losses. So that's why we are not consider the M equals to greater than 1. So we have to choose the range of modulation index in between 0 and 1. M is considered from 0 and 1. ठीक है, ये अपन लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं. Today we will discuss about the another parameter. Most important parameter is the power. Power is the most important parameter for in case of AM. Okay. So show in this one PPT, the power of AM basically power PT equals to total power is equals to PC plus PSB. PC is the carrier power and PSB is the sideband power. And the PC is the carrier power, PSB is the sideband power. Okay. So PT equals to PC plus M square by 2 PC. अब ये M square by 2 PC कैसे कैलकुलेट हुआ? As we know that the expression of double sideband full carrier, in terms of modulation index, this one. ठीक है, ये लास्ट क्लास में बताया था अपन ने एक्सप्रेशन कि डबल साइडबैंड फुल कैरियर है. डबल साइडबैंड फुल कैरियर को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन केस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, है ना. दैट इज द Vm by 2 था यहाँ पे एक्सप्रेशन, लास्ट क्लास में अपन देखे हैं. तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या था? Vm by 2. ओके, Vm by 2 और M एक्चुअली क्या होगा? M इक्वल्स टू Vm by Vc. ठीक है, तो Vm क्या हो जाएगा? M into Vc. सो एम वी सी डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो सेम वही है एक्सप्रेशन ऑफ ए एम ऑफ डबल साइड बैंड फुल कैरियर. डबल साइड बैंड क्यों है? क्योंकि फर्स्ट क्या है, अपन अपर साइड बैंड भी ले रहे हैं, दूसरा लोअर साइड बैंड भी कंसीडर करें, तो दैट इज द डबल साइड बैंड.
और फुल कैरियर क्यों? क्योंकि कैरियर का कंपोनेंट प्रेजेंट है. So that is the expression of AM. Which type of AM? Double sideband full carrier. Okay. And the in terms of modulation index में M की टर्म आ रही है ना, स्मॉल m की टर्म आ रही है. सो अपन ने एक्सप्रेशन किसमें निकाला है? डबल साइडबैंड फुल कैरियर AM, बट इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ओके, पहली चीज समझ में आई? ठीक है. इस वाले पार्ट का कैरियर वाले सिग्नल जो फर्स्ट कंपोनेंट है, इस वाले पार्ट का जो पावर कैलकुलेट करेंगे दैट इज नोन एज द पीसी. दिस वन पीसी. ओके. दूसरे वाले पार्ट का क्या है? ये जो साइड बैंड वाला पार्ट है, इसकी पावर को अपन क्या बोल रहे हैं? पीएसबी. दिस वन पीएसबी, साइड बैंड पावर. ओके. अब एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे. ऑल द स्टूडेंट विल नोटेड the important statement, the average value of cosine and sine, the average value of cosine और sine टर्म, मतलब cos का और sin का जब अपन एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है, या पावर कैलकुलेट करें, तो वो वैल्यू कितनी आएगी? 1/2. ये नोट करना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अपने न्यूमेरिकल में भी काम में आएगा और अपन आगे स्टडी भी करेंगे तो भी ये काम आएगा. और 12th में अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, जहां आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं साइन कोसाइन की वैल्यू, तो अपन उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कोसाइन और साइन, मतलब कोई भी साइनोसोडल है, कॉस वाली टर्म है, उनका जब भी एवरेज वैल्यू या पावर कैलकुलेट करें तो उसकी पावर क्या आएगी? 1/2. एवरेज वैल्यू दैट मीन्स पावर. ये फर्स्ट क्लास में बताया था अपन ने, एक एक्सप्रेशन बताया था मैंने, पावर इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर टर्म एक्स ऑफ टी. ठीक है. तो अगर अपन कोसाइन या साइन का एवरेज वैल्यू लें या उसकी पावर कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/2. ये नोट करो, सभी बच्चे नोट करो. ठीक है. अब इस वाली टर्म में अपन देखें कि ये वाली टर्म है, ये कैरियर वाला पार्ट है, दैट इज द पीसी. ठीक है. और अपन वीसी को अपन अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, वीसी को अंदर वाली टर्म में अपन लें, तो वीसी को अंदर वाली टर्म लें और इस ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में कौन सी टर्म है? कोसाइन वाली टर्म है. तो कोसाइन वाली टर्म का अगर अपन वैल्यू पावर कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी? 1/2. सो दैट इज द m²/2, यानी 1/2 पीसी. 1/2 पीसी. इज इट क्लियर? यह आया समझ में? और देखो एक और एग्जांपल से बताता हूं, एक और ये अपन एग्जांपल देखते हैं कि इफ x ऑफ t इक्वल्स टू है 2 + 5 cos 100πt. अब इसका पावर कैलकुलेट करो आप, टू डिटरमाइन द पावर ऑफ द x ऑफ t. पावर ऑफ x ऑफ t अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? पावर विल बी द एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है. एवरेज वैल्यू में इसमें कोई कोसाइन या साइन टर्म नहीं है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो गया. कांस्टेंट का तो स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है. कोसाइन और साइन का वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 आएगी. तो 2 का स्क्वायर करा 4 आया, 5 का स्क्वायर करा 25 आया. कॉस का या साइन का कोई भी टर्म है, कॉस के अंदर कुछ भी हो, 1000πt हो, 10,000πt हो, कॉस का अंदर जो भी वैल्यू है कॉस या साइन का, उसका एवरेज वैल्यू कितना आएगा? 1/2. ये 1/2 लीजिए, तो दैट इज द 4 + 25/2. ओके. इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं. मतलब पावर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि कोसाइन से जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर और कॉस और जो साइन है उसका वैल्यू 1/2. तो 5 का स्क्वायर 25, कॉस का साइन का एवरेज वैल्यू या पावर 1/2, तो दैट इज द 25/2. इज इट क्लियर? तो सेम यही अप्रोच अपन यहाँ लगा रहे हैं. तो ये जो कॉस या कॉस वाली जो टर्म है अंदर, कोसाइन वाली टर्म है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2. ये 1/2 आ गया, 1/2. और बाहर जो कांस्टेंट है वो क्या है? mvc है, तो m² vc का स्क्वायर, m² vc का स्क्वायर. vc स्क्वायर की एक्चुअली वैल्यू क्या आएगी? ये pc की फॉर्म में, तो pc की फॉर्म में लिख दिया अपन ने. और देखो मैं और इसको थोड़ा डिटेल में और बताता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो टर्म है, फर्स्ट वाली जो टर्म है vc cos ωct, है ना, इसका अपन पावर कैलकुलेट करें तो कैसे आएगा? कांस्टेंट का vc² हो गया, कॉस का या साइन या जो भी है
कोसाइन साइन टर्म है उसका एवरेज वैल्यू पावर कितनी है कि 1/2, तो ये क्या बनेगा VC स्क्वायर बाई 2, ये VC स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सेकेंड टर्म में लिया, ये कॉस वाली टर्म है, इसमें क्या होगा m स्क्वायर VC का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, और कॉस का टर्म कितना आएगा 1/2, तो ये क्या हुआ m स्क्वायर VC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, m स्क्वायर VC स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 दैट इज द 8। ठीक है, अब ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सेम यही टर्म इसके लिए भी आएगी। ठीक है ना, थर्ड वाली टर्म के लिए क्या आएगा m स्क्वायर VC का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 1/2 दैट इज द 1/8। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा VC स्क्वायर बाई 2 प्लस VC स्क्वायर बाई 2 इंटू m स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व करें तो VC स्क्वायर बाई 2 कॉमन आउट ले लिया अपन ने, VC स्क्वायर बाई 2 कॉमन आउट लिया, और VC स्क्वायर बाई 2 एक्चुअली क्या है PC है, VC स्क्वायर बाई 2 क्या है एक्चुअली PC। इज इट क्लियर? जैसे मैं और बताऊं देखो आपको इसमें, the term is the this one डबल साइडबैंड फुल कैरियर एक्सप्रेशन। इसको किस तरह से अपन ने रिप्रेजेंट करा है VAM/2, ये एक्सप्रेशन, इसको अपन इसकी पावर कैलकुलेट करें, कॉपी दिस वन। ठीक है, सो द फर्स्ट वन टर्म, ये कैरियर वाला पार्ट है, कैरियर वाले पार्ट में अपन इसकी कैरियर वाले पार्ट को अपन इसकी पावर कैलकुलेट करें PC, दैट इज द PC इज इक्वल टू कांस्टेंट का स्क्वायर VC का स्क्वायर और cos ओमेगा t, कोसाइन और साइन टर्म का अगर अपन पावर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 1/2। इज इट क्लियर? प्लस सेकेंड टर्म है MVC कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर इनटू कोसाइन का लिया तो कितना आएगा 1/2। ठीक है, थर्ड वाली टर्म में फिर अपन देखें तो क्या आएगा ये MVC स्क्वायर MVC/2 का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर इनटू 1/2। सॉर्ट आउट करो इसका तो कितना आएगा ये VC स्क्वायर बाई 2 प्लस M स्क्वायर VC स्क्वायर VC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अर्पित, ये अर्पित, यस सर, सॉरी सर। ठीक है, ये आया, ये वाले पार्ट को अपन सॉर्ट आउट करें, VC स्क्वायर बाई 2 कॉमन आउट लिया अपन ने, VC स्क्वायर बाई 2 कॉमन आउट लिया तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2
और VC स्क्वायर बाई 2 एक्चुअली क्या है, ये वाली चीज क्या है, ये PC है, दैट इज द PC कैरियर पावर, PC इज द कैरियर पावर 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2, PT इक्वल्स टू PT। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जाम में 101% इस पे न्यूमेरिकल आएगा, RTO एग्जाम। PT इक्वल्स टू PC इंटू 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2। PT इक्वल्स टू PC इधर ले लिया तो PT डिवाइडेड बाई PC इक्वल्स टू 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और होप सो ये समझ में आएगा। आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट अपने को रिमेंबर रखना है वो ये रखना है, और मैंने स्टेटमेंट भी तुम्हें नोट डाउन करवाया है कि कोसाइन और साइन का पावर क्या आएगा 1/2। ये जो कॉस वाली टर्म है, ये कॉस वाली टर्म है, जब भी इसका पावर कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा 1/2। कोसाइन वाली टर्म हो, साइन वाली टर्म हो, पावर क्या आएगी 1/2। और जो आगे कांस्टेंट है वो उसका क्या आ जाएगा पावर स्क्वायर में, VC स्क्वायर। ये वाला कांस्टेंट है MVC/2, तो MVC/2 का स्क्वायर। अंदर कॉस वाली टर्म है तो कॉस का 1/2। तीसरे वाले टर्म में देखें MVC/2 कांस्टेंट का स्क्वायर इनटू कॉस वाली टर्म का 1/2। ठीक है, मतलब कांस्टेंट का जब अपन एवरेज वैल्यू लेते हैं तो कांस्टेंट की एवरेज वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, सो दैट्स वाई वो क्या बन जाता है VC स्क्वायर। स्टार्टिंग वाले टर्म में क्या जाएगा, वो उसका स्क्वायर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट अपने को रिमेंबर रखना है कि जब भी कोसाइन या साइन वाली टर्म है, जैसे ये था 5 का हो गया स्क्वायर 25, और कोसाइन वाली टर्म का क्या रहेगा 1/2। तो बस ये याद रखना है, एवरेज वैल्यू ऑफ कोसाइन और साइन, उनका एवरेज वैल्यू कितना लेते हैं अपन 1/2। ठीक है, जैसे इस वाला जो तुम्हें फर्स्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूले बताए थे कुछ एनर्जी और पावर के, तो अब जैसे यहाँ पावर वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला है ना, मैं स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया। सिग्नल है GT, द पावर सिग्नल अपन कैसे कैलकुलेट करा, इसका टाइम एवरेज लिया। ठीक है, और अंदर अपन ने क्या करा, इसका स्क्वायर करा सिग्नल का। ठीक है, अंदर अपन ने क्या करा, इसका स्क्वायर करा। स्क्वायर करने के बाद क्या लिया अपन ने, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया 1/t अंडर इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस के t/2 प्लस t/2 लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, मीन स्क्वायर वैल्यू और एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू जो अपन GT का जैसे स्क्वायर है, तो अंदर एक्चुअली किसका स्क्वायर हुआ, यहाँ पे अंदर अपन ने किसका स्क्वायर करा, कोसाइन टर्म का। अंदर जैसे अपन इसमें इस ऐसे वाले एग्जांपल में देखें तो GT इक्वल टू जैसे 5 cos 100πt है, तो 5 का तो स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, cos का स्क्वायर कितना हो गया cos स्क्वायर 100πt, और जब भी cos स्क्वायर 100πt का अपन एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 1/2। मैंने देखो यहाँ भी नोट कर रखा है, एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा t दैट इज इक्वल टू 1/2। इज इट क्लियर, ये अपने को रिमेंबर रखना। तो पावर के रेस्पेक्टिव ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, PT इक्वल्स टू PC इंटू 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2। अच्छा, इस फॉर्मूले को थोड़ा और ऑब्जर्व करें, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि बाय द वे अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 है, m इक्वल्स टू 0 है, तो PT इक्वल्स टू कितना हो गया, m इक्वल्स टू 0 करा तो ये वाली टर्म सॉर्ट आउट होगी, तो PT इक्वल्स टू कितना आ गया, PC आ गया। सो अब इसका मीनिंग क्या निकला कि और m इक्वल्स टू 0 दैट मींस इंफॉर्मेशन सिग्नल इज 0, कोई मॉड्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, तो कौन सा वाला पार्ट ट्रांसमिट होगा, केवल कैरियर वाला पार्ट, केवल PC पावर कंज्यूम होगी, PC पावर रिक्वायर्ड रहेगी, जिसका कोई यूजफुल नहीं है। ठीक है ना,
तो इस तरह से अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट अपन ने केस जो कंसीडर करे थे ना मॉड्यूलेशन इंडेक्स में, वो सारे केस इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पावर का फॉर्मूला। अब देखो जैसे नेक्स्ट अपन देखते हैं परसेंटेज पावर सेविंग। परसेंटेज पावर सेविंग को अपन कैलकुलेट करें कि हाउ मच पावर इज सेव। जैसे 4 टाइप के एएम है, डबल साइड बैंड फुल कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, सिंगल साइड बैंड फुल कैरियर, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। ठीक है, तो डबल साइड बैंड फुल कैरियर का एक्सप्रेशन तो ये अपन ने देख ही लिया, पीटी इक्वल टू पीसी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। बाय द वे अगर अपन डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, कैरियर को हटा दो, उस केस में कितनी पावर अपन सेविंग कर पाएंगे, कितनी पावर सेव कर सकते हैं। भाई कोई ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, वो कैरियर भी ट्रांसमिट करेगा, अपर साइड बैंड भी ट्रांसमिट करेगा, लोअर साइड बैंड भी ट्रांसमिट करेगा। तो 3 पार्ट में अगर वो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा तो सो इट इज रिक्वायर्ड मोर पावर टू ट्रांसमिट द सिग्नल। फॉर एग्जांपल द सिग्नल ट्रांसमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम भीलवाड़ा टू चित्तौड़। Okay, so that's why we have to using the more power to transmit the signal from one point to another point. Okay, in case of double sideband full carrier, तो इसमें क्या है, 2 साइड बैंड भी है, अपर साइड बैंड है, लोअर साइड बैंड है और कैरियर भी है, तो 3 टर्म को ट्रांसमिट कर रहा है वो, है ना। और इंफॉर्मेशन अपनी या जो भी है, जो सिग्नल अपने को सेंड करना है, वो एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट है, अपर साइड बैंड में और लोअर साइड बैंड में। इस वाले पार्ट में अपन देखें तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कौन सी टर्म में, अपर साइड बैंड में, लोअर साइड बैंड में। अदरवाइज यहाँ ओमेगा एम जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ प्रेजेंट है, इस वाली टर्म में प्रेजेंट है और इस वाली टर्म में प्रेजेंट है। तो अपन कैरियर को रिमूव कर सकते हैं, कैरियर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कर सकते हैं ना। ठीक है, सो दैट्स वाई, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी तुम्हें क्लास में बताया था लास्ट क्लास में, कि जैसे किसी पर्सन को सेंड भेजना है अपने को भीलवाड़ा से चित्तौड़, तो अपन ने उसको एक बाइक दी, तो बाइक एक्चुअली क्या है, कैरियर है। तो बाइक को भेजना पर्पस तो नहीं है, पर्पस अपना क्या है, पर्सन को सेंड करना है ना, पर्सन को पहुंचाना है भीलवाड़ा से चित्तौड़, ना कि अपने को सिंगल, अपन अगर सिंगल बाइक को भेज दें, सिंगल कैरियर को भेज दें, तो उससे कोई मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। एक्चुअली भेजना अपने को क्या है, पर्सन को सेंड करना है। तो पर्सन का इंफॉर्मेशन, जिसको पर्सन को किससे कोरिलेट करें, इंफॉर्मेशन से। तो द रिक्वायरमेंट इज दैट इंफॉर्मेशन शुड बी सेंड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। तो फर्स्ट अप्रोच लगाई कि कैरियर को रिमूव कर दिया जाए, कैरियर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको सेंड करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। सो हाउ मच पावर इज सेविंग इन केस ऑफ डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। पावर का फॉर्मूला लिया, पीटी इक्वल टू पीसी प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला किसके लिए था, डबल साइड बैंड फुल कैरियर के लिए। एम इक्वल टू 1 करा, मैक्सिमम मॉड्यूलेशन करा, जैसे मैंने मैक्सिमम मॉड्यूलेशन करा एम में, तो उस केस में पीटी कितना आया, 3/2 पीसी। तो पीसी इंटू 1 प्लस एम की वैल्यू 1 रखी, तो 1 का स्क्वायर बाई 2 दैट इज द 3/2। सो पीटी इक्वल टू 3/2 पीसी। आई बात समझ में। अब दूसरा केस लिया अपन ने, पीटी इक्वल टू पीसी 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, मतलब द पीटी इक्वल टू पीसी प्लस पी साइड बैंड। ठीक है, सो दैट विल बी द पीसी इसको ओपन अप करें अपन, इस वाले एक्सप्रेशन को ओपन अप करें, तो ये क्या आएगा, पीसी प्लस पीसी एम स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये साइड बैंड पावर है। ठीक है, दिस इज द साइड बैंड पावर, दिस इज द कैरियर पावर। सो इन केस ऑफ डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, इस वाले कैरियर को सप्रेस कर दिया, तो पावर पीटी कितना आया, सप्रेस करने के बाद पीटी इक्वल्स टू दिस वन,
PT इक्वल्स टू PC m स्क्वायर बाई 2। ठीक है, m की वैल्यू 1 रखी तो ये कितना आएगा PC बाई 2, दैट इज द PC बाई 2। ठीक है, कैरियर पावर रिमूव कर दी, रिमेनिंग पार्ट क्या रहा साइड बैंड पावर का, तो PT इक्वल टू PC m स्क्वायर बाई 2, दैट इज द PC बाई 2। m मैक्सिमम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो m की वैल्यू 1 करा तो PT इक्वल टू क्या आ जाएगा PC बाई 2। सेविंग का ये वाला फॉर्मूला है, सेविंग द टोटल पावर माइनस सब्ट्रैक्ट पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर, तो 3/2 PC माइनस 1/2 PC डिवाइडेड बाय 3/2 PC, तो कितना है ये 66.66%। कंक्लूजन क्या निकला अब इस स्टेटमेंट का कि अगर अपन कैरियर वाला पार्ट ट्रांसमिट करते हैं तो कितनी पावर वो लेता है 66.66%, जबकि उसका कोई यूजफुल ही नहीं है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, और भेजनी अपने को इंफॉर्मेशन है, भेजना क्या है साइड बैंड, साइड बैंड में इंफॉर्मेशन है। तो कैरियर जो अपन एक्स्ट्रा भेज रहे हैं डबल साइड बैंड फुल कैरियर में है, तो कैरियर को ट्रांसमिट करने के लिए एक्चुअली कितनी पावर की रिक्वायरमेंट हो जाती है अपने को 66.66%। तो अगर अपन कैरियर को रिमूव कर दें, कैरियर को हटा दें, तो कितनी पावर सेविंग कर लेंगे 66.66% पावर अपन सेव कर सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज। जब अपन दूसरी स्टेज में गए थे ना AM की, डबल साइड बैंड फुल कैरियर से अपन किस में गए डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में, तो कितनी पावर सेव कर ली अपन ने 66.66%। बात आई समझ में। अब जैसे ही अपन जाएं कि थर्ड वाले केस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर का मतलब क्या रहेगा कि कैरियर को भी हटा दो, मतलब अपन अगर इस वाली टर्म को लिखें तो अगर एक साइड बैंड और हटा दें, कैरियर तो हटा ही दिया, एक साइड बैंड और हटा दिया, तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी इस केस में PC m स्क्वायर बाई 4। क्योंकि भाई साइड बैंड पावर को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, अपर साइड बैंड के लिए लोअर साइड बैंड के लिए, है ना। अगर अपन इसको अपन साइड बैंड करें P अपर साइड बैंड और एक PLSB लोअर साइड बैंड, तो पावर कितनी कितनी आएगी दोनों के केस में, दैट इज द PC m स्क्वायर बाई 4, PC m स्क्वायर बाई 4। इन दोनों का टोटल करते हैं तभी ये आता है PC m स्क्वायर बाई 2, है ना। So the in case PT equals to PC m square by 4, so m की वैल्यू 1 करें, मैक्सिमम मॉड्यूलेशन करें तो कितना आ जाएगा ये PC by 4, वही फॉर्मूला लगाया अपन ने, टोटल पावर 3/2 PC माइनस 1/4 PC डिवाइडेड बाय 3/2 PC, तो कितनी पावर सेव कर ली 83.3%। मतलब अगर अपन एक कैरियर को रिमूव करा तो कितनी पावर सेव करी 66.66%। ठीक है, एक और साइड बैंड हटा दिया क्योंकि दोनों ही साइड बैंड में इंफॉर्मेशन है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम में भी इंफॉर्मेशन है और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम उसमें भी इंफॉर्मेशन है, तो एक और साइड बैंड क्यों एक्स्ट्रा अपन भेजें और पावर सेव करते हैं, एक ही साइड बैंड से इंफॉर्मेशन चली जाएगी। इज इट क्लियर। तो एक और अपन साइड बैंड रिमूव करते हैं तो उस केस में कितनी पावर और सेव कर ली अपन ने 16.6%, तो टोटल कितना बच गया अपना पावर सेविंग 83.3%। मतलब अगर अपन सिंगल साइड बैंड जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, फोर्थ वन जो AM है, टाइप ऑफ AM में अपन लास्ट वाला जो AM देखे हैं सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, ये जो चार टाइप का AM अपन स्टडी करा, सो फोर्थ वन ये वाला सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में देखें तो कितनी पावर सेव हो जाएगी अपनी 83.3%, इतनी पावर अपन सेव कर सकते। सो प्रैक्टिकली जो AM अपन काम में लेते हैं, जो रिसेंटली जो अभी मार्केट में जो अपन है या प्रैक्टिकली जो वैल्यू अपन AM का कौन सा काम में लेंगे सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। क्यों काम में ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट
it is using or it is provide the maximum power saving, that is the 83.33%. So that's why we have to using or choose the single sideband suppress carrier. Point समझ में आया? Is it clear? Okay. ठीक है, बाकी अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पावर के रेस्पेक्ट। और जैसे एक चीज और मैं बता देता हूँ, चलो इस क्लास को थोड़ा वाइंड अप करने से पहले, कि पावर एक्चुअली क्या रहती है, करंट की फॉर्म में अपन जैसे लाना चाहें पावर को करंट की फॉर्म में, तो P इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर इंटू R। ये फॉर्मूला 12th में पढ़ा हुआ तुमने। जैसे पावर को वोल्टेज में लिखें तो कितना आएगा, P इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। जब पावर को करंट की फॉर्म में लिखें तो पावर P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। तो PT की जगह अपन इस PT और PC की जगह करंट के रूप में अगर इसको फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करें तो कैसे आएगा, PT की जगह लिखा IT स्क्वायर इंटू R, PC की जगह क्या लिखा, IC स्क्वायर इंटू R। R से R कैंसिल आउट हो गया, तो IT स्क्वायर इक्वल टू IC स्क्वायर इंटू 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2। यह समझ में? So IT equals to IC under root of 1 plus M squared. That is the another formation of the current formation. जैसे ये तो पावर का फॉर्मेशन था, PT equals to PC 1 plus M square by 2. By the way, एग्जाम में करंट के फॉर्मेशन से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, तो उस केस में करंट का क्या फॉर्मूला आएगा, IT equals to IC under root of 1 plus M square by 2. अब जैसे कोई एग्जाम्पल एक सॉर्ट आउट करते हैं अपन। एंटीना करंट 8 एम्पियर है व्हेन द नो मॉड्यूलेशन, कोई मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है, एंटीना ट्रांसमिट का काम करेगा, सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। फॉर एग्जांपल भीलवाड़ा टू चित्तौड़ सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, सो द एंटीना करंट इज द 8 एम्पियर इन केस ऑफ नो मॉड्यूलेशन। ठीक है, जैसे अपन ने मॉड्यूलेशन करा बट इन इट इंक्रीजेज अप टू 8.93 एम्पियर व्हेन द मॉड्यूलेशन इज प्रेजेंट। मतलब इस पार्ट का क्या है कि अगर इन केस ऑफ मॉड्यूलेशन 8.93 एम्पियर करंट आएगी एंटीना करंट, विदाउट मॉड्यूलेशन दैट इज द 8 एम्पियर। सो फर्स्ट डिटरमाइन द मॉड्यूलेशन, परसेंटेज मॉड्यूलेशन। परसेंटेज मॉड्यूलेशन के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, IT इक्वल टू IC अंडर रूट ऑफ 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2। और ये मैंने अभी बताया है तुम्हें कि अगर विदाउट मॉड्यूलेशन मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स M इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ। M इक्वल टू 0 हुआ तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कैरियर भेजनी है, केवल सिंगल कैरियर रह जाएगा। तो उस केस में 8 एम्पियर एक्चुअली क्या है, IC कैरियर करंट, तो कैरियर ही रहेगा। कैरियर कब आएगा, विदाउट मॉड्यूलेशन, M इक्वल टू 0 करंट। सो IC इक्वल टू 8 एम्पियर, IC इक्वल टू, ये देखो IC इक्वल टू 8 एम्पियर, और मॉड्यूलेशन करते क्या बना ये 8.93, तो IT इक्वल टू कितना होगा 8.93। तो IC तो क्या है, विदाउट मॉड्यूलेशन करंट, IT क्या है, विद मॉड्यूलेशन करंट। तो यहाँ IT की जगह तो रखा 8.93, IC की जगह क्या रखा 8 एम्पियर रखा, और M कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ जाएगा। तो दैट इज द 8.93 डिवाइड बाय 8 स्क्वायर, M की वैल्यू कितनी आई 70%, आंसर हो गया। ठीक है, इसी दूसरे फॉर्म में क्या है, टोटल एंटीना करंट व्हेन मॉड्यूलेशन M इक्वल टू चेंज 80%, मतलब 70 से 80% कर दें, उस केस में टोटल करंट कितनी आएगी। तो IT कैलकुलेट करना है, IC ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 8 एम्पियर, M की वैल्यू कितनी रखनी है 80%, मतलब 0.8 हो गया, M की जगह 0.8 और IT कैलकुलेट किया तो IT कितना है 9.19%, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 70 से 80 पे चले गए तो टोटल करंट इंक्रीज हो गया। जो पहले 8.93 था 70% मॉड्यूलेशन पे, वो 9.19 हो गया एम्पियर जब 80% कर। तो इस तरह के भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो होप सो कि आज के लेक्चर में तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। पावर और करंट के रेस्पेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया है। और तुम ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहो तो मैंने नोट्स भी तुम्हारे गूगल क्लासरूम पर डाले हुए हैं, उस पर भी तुम जाके देख सकते हो। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, होप सो आपकी समझ में आया होगा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं अभी अटेंडेंस लेता हूँ तुम्हारी। आरुनामा प्रेजेंट सर। अनुजा प्रेजेंट सर। अर्पित प्रेजेंट सर। कर्नेल प्रेजेंट सर। नील प्रेजेंट सर।
ठीक है ना बेटा। आप लेक्चर आगे के जरूर रेगुलरली अटेंड करने हैं। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करो, है ना। फोन से भी कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी कर सकते हो, है ना। और तुम्हारे जो लेक्चर है इसको मैं अपलोड कर दूंगा कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, उस पर भी आप देख सकते हो, है ना। और आगे के लेक्चर रेगुलरली अटेंड करने हैं बेटा, रेगुलरली अटेंड करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।